Okay, guys, so please focus here now. We were there into a time value of money portion. We have completed the annuity part. In that, we have also understood the applications of annuity due and ordinary annuity. Our focus is right now on a compounding, that means finding the future value. Today, we are going to discuss a very important concept called deferred annuity. Now, you might not have done that in the financial mathematics, which might have happened in first or second semester, if I don't know. But if it was there, then it's well and good. And if it was not there, then you should put utmost focus today. You might have heard about some insurance plans in which you will begin the investments after some number of years, and you will receive the benefits from that insurance plans after many number of years. आपने सुना होगा कि सर अभी आपको कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है, थोड़े समय के बाद करना है। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के प्लान होते हैं, मॉडल पोर्टफोलियोज के प्लान होते हैं, इंश्योरेंस के एन्युटीज कुछ ऐसी होती है जहां पे आपको शुरू में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता, कुछ समय के बाद इन्वेस्ट करना है। तो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड एन्युटी फर्स्ट, and then we will go to the questions of it. So friend, the deferred annuity is nothing but a delayed annuity. It is also referred sometimes as delayed annuity. So what is this delay period? So the amount of inflows and outflows are not occurring for few number of periods. It will start occurring after some number of periods. तो सर अगर मुझे फाइंड करना है कि 10 साल के बाद मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या है, इफ आई इन्वेस्ट 10,000 rupees on a yearly basis, but the first installment of 10,000 will begin from the 5th year onwards. So up to 4 years, there is no investment taking place. But for the next 6 years, this will be an annuity. So it is nothing but the delayed annuity. Why? Because up to 4 years, there is no transaction taking place. It will begin from the 5th year onwards, and we want to know the future value at the end of 10th year. So friends, in this case, the only thing you will have to do is that just ignore this deferment period. Deferment period को क्या करना है? इग्नोर कर देना है। उसको बोलो टाटा बाय बाय सी यू, बेटा तेरी कोई जरूरत नहीं है, चल निकल इधर से, पतली गली से निकल। सो इन द कैलकुलेशन of 10 years, this deferment period will be eliminated, and that is pretty much understood as well, no? आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तब तक आपको कोई इंटरेस्ट क्यों देगा? किसी को भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। कोई हमारी सेवा करने के लिए तो हमें इंटरेस्ट नहीं देते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट होता है तब जाके आपको इंटरेस्ट या तो फिर उसके कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। यस और नो? तो आपको 10 साल के कैलकुलेशंस में से 4 साल को एलिमिनेट कर देना है। आपकी एन्युटी सिर्फ 6 साल की ही होगी, उसे कहते हैं डेफर्ड एन्युटी, इन अदर वर्ड्स अ डिलेड एन्युटी एज वेल। लेट्स start reading the question so that you will be able to get it in a better way. So you may just take a snap of these two questions. These are going to be our FV of deferred annuity questions. Please take a snap of it, and then we will slowly and steadily कछुए की तरह solve करना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है भैया? चलो मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दीजिए, अदरवाइज आई विल गो इनटू फियर ऑफ मिसिंग आउट जोन। ओके, थैंक यू सो मच। चलो एकदम अटेंशन पक्का होना चाहिए। हाँ, आप मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दैट इज बीइंग नाउ कन्वर्टेड इनटू अ मॉडर्न स्टेटमेंट। अटेंशन दो। पहले जितना खून देना मुश्किल था ना, आज अटेंशन देना उससे भी मुश्किल हो गया है भैया। वी आर लूजिंग आवर पेशेंस डेली एंड डेली। यस, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पेशेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले मूवी 4-4 घंटे के आते थे, फिर 3 घंटे के हो गए, फिर 2.5 घंटे के हो गए, अब 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे भी लोग बैठ नहीं पा रहे हैं।
Speed is a different thing, but remaining in the impulsive behavior is a different thing. कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, कहीं पे भी अपन फोकस ना कर पाए, 15 मिनट के लिए भी अपन अच्छी तरीके से कुछ चीजें सुन ना पाए, तो बेटा ये प्रॉब्लमेटिक है. दिस इज ऑल्सो बीन observed by the various people across the globe, that this, the big people in the IT giant companies, the chief technical officers, their CFOs, the people who are there into their software development, their web development, these people are putting their kids in a wardrobe school where the focus is not on technological gadgets and electronic equipments. The entire study is happening through some natural resources. So they are there into some sort of a very good natural environment, जहाँ पे झाड़ पत्ते झरने वो देखते हैं, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं. बहुत ही बेसिक लाइफ स्किल्स के ऊपर वो बच्चे फोकस करते हैं उन स्कूल्स में, जैसे कि कैसे बुनना है, कैसे सिलाई करनी है, खाना बनाना कैसे है, कुछ कुछ चीज़ें खाने के अंदर हमें क्या कैसे ऐड ये सब कुछ करना है. तो ये बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं. ये फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस के कुछ चीफ ऑफिसर्स हैं वो, because they have understood that we may become very impatient by using these electronic gadgets on a continuous basis. We should take the benefits of it, definitely, but we should not get, we should not get wiped away by the tremendous force of this technology. अपना impatience नहीं आ जाना चाहिए, थोड़ा सा attention. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ले लेते हैं. दो तो बोलेगा कि मेरी तो बारी हर बार दूसरी ही आती है, तो बोला कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें पहला ले लेते हैं, दूसरे को पहला ले लेते हैं. मिस्टर धोनी will start investing 1 crore rupees at the end of every 6 months starting from the end of 5th year at 15% per annum expected rate. What fund he will have after 12 years? Read it again very carefully. Mr. Dhoni will start investing 1 crore at the end of every 6 months, starting from the end of 5th year. तो भैया 4 साल और उसके फर्स्ट हाफ तक अपन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट 5th ईयर में भी एंड पे इन्वेस्ट करते हैं. कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 6 मंथली दिया हुआ है, ठीक है. एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ ही इज इन्वेस्टिंग. So that's a sort of a retirement planning of Mr. Dhoni after retiring from the cricket, So this is how the timeline looks like. Let's go to the timeline. अब बेटा इस timeline में there are 2 cut case, right? One is first 5 years, नहीं 12 साल के लिए है, sorry. तो उसके बाद में भी साल आएंगे. तो first is first 5 years and then next 7 years. अब ये तो धोनी भाई साहब है ना, वो 1-1 करोड़ रुपए कब से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ 5th ईयर. सो दिस इज से द फर्स्ट ईयर इज ओवर, सेकंड इज ओवर, थर्ड इज ओवर, फोर्थ इज ओवर, एंड दिस वन इज द 5th ईयर. सो ईच एंड एवरी कटका is representing a year. Now in the last year, I mean the 5th year in this case, there will be 2 parts, the first 6 months and another 6 months. So here we have got 2 parts. This one is first 6 month and second part is second 6 month. Now friends, at the end of the 5th year he is investing. So when I say at the end of the 5th year, that means at the end of second 6 month of the 5th year he is investing, yes or no? Try to understand my statement again very carefully. When I say he is investing at the 5th year, at the end of the 5th year, that means he is investing at the end of the second half of that year. Why I am considering that in a half? Because the compounding is 6 monthly in nature. अब तुम उस second half, 5th year के second half में, this entire black cut का is the 5th year.
बेटा फिफ्थ ईयर के सेकेंड हाफ में तुम इन्वेस्ट करते हो तो वो तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको ये पीरियड को भी कैलकुलेट करना है, लेना है कंसिडरेशन में। तो उसके बाद कितने साल रहे? 7 साल रहे, 7 years। एंड वी वांट टू नो द फ्यूचर वैल्यू एट 12th ईयर। तो कितनी बार अपन पैसा, धोनी भाई साहब, पैसा जमा करवाएंगे? एक तो 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद वाले जो 7 साल है उसमें हर 6 महीने वो 1-1 करोड़ रुपए डालेंगे, ठीक है। तो वो टोटल हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 14 टाइम्स तो डाले धोनी भाई साहब ने पैसे। लेकिन और एक बार डाले हैं, वो कब डाले हैं? जो फिफ्थ ईयर है ना, उसका एंड है वो। तो अपने जो नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे वो 14 + 1 विल बी 15, 15 हो जाएंगे। तो ये 15 अगर किसी को समझ में आ गया कि क्यों आया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो यहां तक हर कुछ क्लियर है। Shall I move ahead? You come to know that why I have taken 15. Confirmation, please, through the chat box or by unmuting yourself or whatever the it may be feasible to you. Have not received the confirmation yet from students. Only from Mr. Meg I have received. Mr. Rishit is saying me to explain it for one more time. Very nice, Mr. Rishit. That's how you should react. If you are not getting it, please let me know. समझने की कोशिश करो। धोनी भाई साहब कब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं? एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 5th ईयर। 5वें साल के एंड से वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कितने कितने करोड़? 1-1 करोड़, 1-1 करोड़, 1-1 करोड़। और हमें चाहिए अभी से लेके 12 साल के बाद वाली फ्यूचर वैल्यू। तो ये हुआ है हमारे 12 साल, ये है हमारे 12 साल, ठीक है। उसको मैं पहला पार्ट डिवाइड करता हूं 5 साल का। तो 5 साल का पहला साल गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। So this one is first year, this one is second, this one is third, this one is fourth. But in the 5th year, there will be 2 katke. Why 2 katke? Because we are following the 6 monthly compounding, no, my friend. So there will be a first 6 month and there will be second 6 month. तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने तक धोनी भाई साहब इन्वेस्ट करेंगे? एक तो 5वां खत्म हो गया समझ लो, उसके बाद तो 7 साल और है, 7 years। तो धोनी भाई साहब 7 साल तक तो इन्वेस्ट करने ही वाले हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 14 टाइम्स तो ही इज एनीवे गोइंग टू इन्वेस्ट। इट इज 6 मंथली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, राइट। लेकिन उसके अलावा वो 5th ईयर के एंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 5th ईयर का जो सेकेंड हाफ है ना, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ 1 more पीरियड। तो दैट विल बी +1। सो 15 पीरियड तक वो इन्वेस्ट करेंगे। व्हाई आई हैव टेकन द लास्ट पीरियड ऑफ द 5th ईयर? 5th ईयर का सेकेंड हाफ है, उसको मैंने क्यों कंसिडर किया? द रीजन बीइंग, सम में ऐसा बताया हुआ है कि ही विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अगर वो बताते कि 6th ईयर के फर्स्ट हाफ से वो शुरू करते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं सिर्फ 7 साल ही कैलकुलेट करता। 7 साल मल्टीप्लाइड बाई 2 इट विल बी 14। लेकिन वो बोल रहे कि 5th ईयर का एंड भी लेना है। तो 5th ईयर का एंड मतलब कि वहां पे वो 6 महीने खत्म होते हैं, 5th ईयर के दूसरे 6 महीने। तो वो वाला पीरियड भी मैंने एक ले लिया। सो माई नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी 14 + 1, 15। Is it clear now? May I have a confirmation? Those who are telling me to repeat, Mr. Kaushal, Mr. Rishit. Thank you so much, Mr. Kaushal. Thank you so much, Mr. Harry. ये हैरी यहाँ ये कौन सा नाम हो गया भैया? इधर बैठा, ये राजकोट है, ये इंग्लैंड नहीं है। Some people will be like, so much stereotyping, नाम में ऐसा क्या होता है? कुछ नाम ही ऐसे होते हैं ना, मतलब हैरी बोलो तो कैसे लगता है, मतलब ऐसा एकदम कूल नाम लगता है। और तुम किसी बोलो को रणछोड़, रणछोड़ इज अ गुड नेम। आई एम नॉट जजिंग द पीपल बेस्ड ऑन द नेम, बट इंप्रेशन होते हैं ना ऐसे लोगों के नाम के भी। कुछ बाबूलाल बोलो और किसी को हैरी बोलो, हैरी कितना कूल लगता है, कूल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए 15।
अपना एक सिंपल सा रूल ये है कि जो भी डेफर्ड पीरियड आता है ना उसको मारो इग्नोर। तो 4 साल एंड 6 मंथ्स, मतलब कि टोटल पीरियड कितने हो गए, 8 और 1 9, 6 मंथ्स। उसको मारना है इग्नोर, उसको कहीं पे गिननाइच नहीं है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ वी इक्वल्स टू आई अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ऑर्डिनरी एन्युटी आई एम टेकिंग, क्योंकि तुम 5th ईयर के एंड में करते हो, 5th ईयर के सेकेंड हाफ है उसके एंड में करते हो कि उसके सेकेंड हाफ के शुरू में करते हो, दैट विल जस्ट मेक अ डिफरेंस ऑफ अ टाइप ऑफ एन्युटी। तो तुम 5th ईयर के एंड में करते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। लेकिन 5th ईयर का जो सेकेंड हाफ है उसके शुरू में करते हैं, जो 5th ईयर के दूसरे 6 महीने शुरू होते हैं, उसी समय पे अगर हम इन्वेस्ट कर दे तो वो एन्युटी ड्यू हो जाता, बट इट विल नॉट मेक डिफरेंस इन माई एन। 5th ईयर में अपन कुछ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एंड में करे कि चाहे वो शुरू में करे। शुरू में करते तो वो एन्युटी ड्यू हो जाता, एंड में कर रहे इसलिए वो ऑर्डिनरी हो गया। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए का धोनी भाई साहब का। 1 प्लस आर इज टू बी कन्वर्टेड into 6 monthly basis. His return expectation is 15%. For entire year, in a year we have got 2 6 months, so 0.15 is to be divided by 2 and n will be 15. That's what we have found, right? There will be a minus 1 after that, and again there will be 0.15 divided by 2 as r in denominator, so equals to 1 crore. ये तो अपने को मालूम ही है सर कि जितना परसेंटेज है उस परसेंटेज को नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर फॉर कंपाउंडिंग से डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स है रेज टू में, उसको नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन ने 14 तो ले लिए, लेकिन उसके अलावा और एक पीरियड आता है जो 5th ईयर का एंड है, तो हमने 15 ले लिए। तो दिस इज हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। सो 1 प्लस 0.075 raised to 15 minus 1 divided by 0.075. Let me simplify this further. 1 crore. So in bracket it will be 1.075 raised to 15 minus 1 divided by 0.075. So equals to, now let's find this 15. You may have 5 के 3 कट के 1.075 raised to 5, 1.075 raised to 5, again 1.075 raised to 5। अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो तो डायरेक्टली सीधा रेज टू 15 कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। 1.075 मल्टीप्लाइड बाय 1.075 प्रेस इक्वल टू, यू विल बी प्रेसिंग द इक्वल टू फॉर 13 मोर नंबर ऑफ टाइम्स। सो टोटल आप 14 बार इक्वल टू प्रेस करोगे, तब जाके जो आपका आंसर होगा वो आपका कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा। चलो बताइए क्या आता है भैया, थोड़ा सा अनम्यूट करके बता दीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, लाइव वातावरण में रहिए भैया। आता है 1.075 raised to 15। Excel में I can do it just in few seconds, but I want you to be little active, little interactive, please, so I can come to know where you are getting stuck. 14 times equal to प्रेस करना है कैलकुलेटर में। 1.075 मल्टीप्लाइड बाय 1.075, एक बार इक्वल टू प्रेस करो और 13 बार, सो टोटल 14 बार इक्वल टू प्रेस करना। क्या आता है बताइए। That comes 2.9589 minus 1, so there will be 0.075, so equals to 1 crore. There will be 1.9589 to be divided by 0.075.
5. As per the Bhagu Sabba, first there will be a division and then there will be a multiplication, Bodmas theorem. So there comes 1.9589 divided by 0.075. So that is 26.11836. You multiply that with 1 crore, it will become 26 crores 11 lakhs 83,600. So that's gonna be the future value at the end of 12th year in Mr. Dhoni's funds. So आज से 12 साल तक वो देखेंगे। और इन्वेस्टमेंट कब शुरू कर रहे हैं? 5 साल के बाद। तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो वो बता ही क्यों रहे हो भैया? उस पीरियड को इग्नोर ही मार दो। तो वही तो हमने किया, उसे कहते हैं डेफरमेंट पीरियड। द डेफरमेंट पीरियड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कैलकुलेशन. We have found the compounding only for 15 periods. As simple as that. Very nice. I had received few answers from Mr. Kaushal, Mr. Megh and from Mr. Sujal too. इस बार लड़कियां कुछ बोल नहीं रही है भैया। लड़कियां कहाँ पे खो गई है? कई बार लड़कियां ही बोलती है, कई बार सिर्फ लड़के बोलते हैं। आपने ऐसे ओड इवन रखा है क्या दिल्ली की तरह कि ओड में लड़कियां इवन में लड़के? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेलेक्ट को टेस्ट करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हड़ा की गड़ा चल बत्ती बुझा नीचे ले पतली गली से उसको कॉपी करके नीचे ले बिड़ू। अपन ने इसको नीचे पेस्ट कर दिया क्योंकि अब अपने को कैलकुलेशन में थोड़ा सा मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना। At the 6 months interval, Mr. Don deposits 10,000 in a savings bank account, which credits the interest at the rate of 8% per annum, compounded semi-annually. तो भैया 6 महीना का कैलकुलेशन जैसा लास्ट टाइम में किया था वैसा ही करना है बिडू लोग। The first deposit was made when Don's son, Chota Don, was 6 years old, and last deposit was made when his son was 21 years old. The money remained in his account and was presented to his son on 25th birthday. How much did Chota Don receive? छोटा डॉन ने कितना रिसीव किया है? अब पहले तो टाइमलाइन समझनी है, तब जाके क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा कि हुआ क्या है भैया, हुआ क्या है। चलो समझने की कोशिश करो। तो ये है अपना टाइमलाइन पूरे 21 साल का, नहीं 25 साल का, सॉरी। फ्रॉम हियर द मनी विल बी रिसीव्ड बाय मिस्टर छोटा डॉन। अच्छा, छोटा डॉन अभी पैदा ही हुआ है। ये साउथ वाला कोई होगा, चिंचपोक के बंदर वाला। 10,000 रुपए कौन जमा करवाता है? एक तो डॉन कहता है अपना और 10,000 रुपए जमा करवाता है, वो भी 6 महीने में। चिंचपोपली का नाला सोपारा का कोई चप्पल चुराने वाला डॉन होगा ये तो कोई। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब ये जो छोटा डॉन है ना भैया, वो है डॉन का सन। वो हो जाएगा 6 साल का, तब अपन कुछ इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो यहां पे अपने होते हैं, समझ लो कि 6 साल। तो पहला साल गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया। एक एक कटका है वो रिप्रेजेंट करता है एक एक ईयर को। ये अपन आ गया 6ठे साल में, 6th ईयर में। तो 6th ईयर के एंड में एक बार इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम क्या बता रहे हैं बताओ, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। दैट व्हेन द छोटा डॉन वाज 6 year old, उस समय पे अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो वो 6 साल का होगा ना,
तो उस समय पे एंड पे इन्वेस्ट कर दिया, और ये 6 मंथली है कंपाउंडिंग। तो जो ये आपका छठवां साल है उसमें और दो ओपन पार्टीशन करेंगे, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने भैया। तो ये जो पहले 6 महीने हैं उसको भी क्या करेंगे, इग्नोर मारेंगे, चल हटा सावन की गड़ा पतली गली से निकल, इग्नोर। लेकिन ये जो दूसरे 6 महीने है ना उसको इग्नोर नहीं करने, क्योंकि दूसरे 6 महीने के इस वाले पॉइंट पे जब वो एंड आता है तब अपन इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कितने हजार रुपए, 10,000 रुपए। चलो अब ये एन्युटी कितने समय तक है, इन्वेस्टमेंट कहां तक करेंगे, जब वो बच्चा छोटा डॉन 21 साल का हो जाएगा तब तक। तो यहां पे समझ लो कि 21 साल हो रहे हैं, 21st ईयर एंड। तो 6 साल गए, 21 साल और 21 साल तक, तो मतलब 21 में से 6 लेस करोगे तो 15 साल आए। तो ये 15 इयर्स आपका एन्युटी चलेगा। अब ये 15 इयर्स में हर 6 महीने हर 6 महीने हर 6 महीने आप 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10,000 रुपए जमा करवाते हो। और एक लास्ट 6 मंथ है ना 6 ईयर के, उसमें भी करवाए। तो कौन बताएगा नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आएंगे, बताओ, चलो बताओ बताओ, ये करके बताओ। एन्युटी का पीरियड कौन सा आएगा, कितने नंबर ऑफ इयर्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स आएंगे, बताओ। 31, very nice. So all those people who have correctly predicted 39, they deserve some round of applause. Let me go over there on the right hand side. Let me have the right hand side mouse click. यहाँ पे इमोजी का कुछ तो ऑप्शन आता है, तो इमोजी आ गए, उसमें अपन सर्च करेंगे अपलोज वाला इमोजी। अपलोज वाला क्यों नहीं आ रहा भैया अब, ठीक है चलो, ये तुषार भाई को मिल गया, ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा यार, मेरे को थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। मैं कुछ और इमोजी डाल देता हूँ, रुको रुको रुको, मेरे पास कुछ नीचे और मिलेगा। ये बलून वाले में जाता है, चलो मैं आपके लिए सबके लिए बलून उड़ाता हूँ। कॉपी पेस्ट, अरे हाँ यार ये तो बहुत इजी था, कॉपी पेस्ट। रौनक सर का हो गया पोपट, तुषार मेघानी 1, रौनक सर 0 स्कोर। चलो आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट तो कर ही सकता था, इतनी सिंपल सी बात थी, बोलो। तो ये जो 31 है वो कैसे आया, आपके जो 15 साल है तो 15 साल के दो 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 6 महीने गिनो, एक साल के दो 6 महीने, मतलब 15 साल के कितने हो गए, 30। लेकिन ये इस वाले को भी भूल नहीं जाना है, छठवां साल है ना 6th ईयर का एंड, उसमें भी जो लास्ट वाला 6 महीना है उसमें तुमने एंड पे इन्वेस्ट किया है, बिकॉज इट्स बीन स्टेटेड दैट व्हेन ही वाज 6 year old दैट टाइम द एन्युटी गॉट स्टार्टेड। तो तुम पीरियड के शुरू में करो कि पीरियड के एंड में करो, दैट विल जस्ट चेंज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ पीरियड्स तो वहां से ही कैलकुलेट होंगे। वो ड्यू कहलाएगा या तो फिर ऑर्डिनरी कहलाएगा, अपना मैं अपने में ऑर्डिनरी है। जो 6th ईयर का जो सेकेंड पार्ट है ना उसके एंड से शुरू करते हैं अपन। तो अपने 31 टाइम्स जो डॉन भाई साहब है वो डिपॉजिट करेंगे 10,000 रुपए। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो रही है भैया, ये 21 साल में आपको एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। बट दैट मनी विल रिमेन इन अ फंड for how many more number of years, 4 years more, and obviously it is not going to remain idle, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा ना आपको। तो उसके ऊपर 8% 6 महीने के कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको मिलता रहेगा 4 साल और। लेकिन फर्स्ट वी शुड रीच टू दिस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट 21st ईयर, एंड दैट मनी will be invested for 4 more years, and that will remain in a fund. It will fetch 8%. From 21st year onwards, our investment will stop. लेकिन उस फंड के ऊपर इंटरेस्ट आना स्टॉप नहीं होगा, जो गैदर हो गया है उसके ऊपर आइडल तो नहीं रखेंगे आप, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एन्युटी का 31 पीरियड है, शुरू करते हैं फॉर्मूला से।
So FV at 21st year equals to I in bracket 1 plus R raised to n minus 1 divided by R. So equals to amount कितना इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपए. सो 1 प्लस आर हो गया. रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%. 8% के साथ क्या किए जाए, कुछ छेड़खानी की जाए कि सीधा 8% डाल दे, बताइए. आठ परसेंटेज के साथ कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. वेरी ट्रू. डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 0.04 raised to 31 minus 1 to be divided by 0.04, so equals to 10,000 in bracket 1.04 raised to 31 minus 1 to be divided by 0.04. 31 है तो तुम 10 के 3 कट के करो और एक को सिंगल वाला मल्टीप्लाई कर दो तो 31 टोटल हो जाएंगे. तो आपको 10 वाला ही एक बार फाइंड करना पड़ेगा अपने कैलकुलेटर में. तो 10,000 और मैं सीधा इधर डायरेक्टली आंसर ईच लिखता हूं. आंसर ईच सो इक्वल्स टू 1.04 रेज़ टू हो गया 31. सो वी हैव गॉट 3.3731 minus 1 divided by 0.04, so equals to 10,000. Then we have 2.3731 divided by 0.04. तो पहले आएगा अपना डिवीजन, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन. So 2.3731 divided by 0.04. So 10,000 multiplied by 59.32834. So that will be 5,93,283 rupees. And that will be future value at the end of 21st year. भैया 21st ईयर तक हमारी अधूरी कहानी और यहाँ पे कहानी खत्म कर दी तो फिर बड़ा पछताओगे. अब ये जो पैसा है ना 593,283 will remain in a fund and will get the fetch the interest for 4 more number of years with a compounding frequency of 6 months. So I will be treating this now as a single cash flow, and the formula of the single cash flow you are aware, right? So FV at 25th year equals to FV at 21st year, and that money will further get 1 plus R raised to n for 4 number of years. So FV at 21st year is 593,283 multiplied by 1 plus R. R will again be 0.04. 8% के 2 कट के करने हैं क्योंकि हमारा जो कंपाउंडिंग है ना वो 6 मंथली हो रहा है और n हो जाएगा 4 साल multiplied by 2, so it will be 8. So 593,283 multiplied by 1.04 raised to 8. So what do we get at 1.04 raised to 8? Let's find it out. So there comes 1.3686. That will be multiplied with this 593,283. So that will be the future value at the end of 25th year. भैया आ गया हमारा आंसर 8,11,949 rupees to be precise.
that is the FV at the end of 25th year. So basically this much of money will be received by Mr. Chota Don at the end of 25th year. Am I sounding clear? यहाँ तक हर कोई क्लियर है भैया? छोटा सा कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज. कुछ भी ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई हो अभी तक. मिस्टर कौशल हैज सेड यस, मिस्टर सुजल हैज सेड यस. सुजल से मेरे को कसौटी जिंदगी की याद आ गई. अरे क्या क्रेज हुआ करता था यार उन सीरियलों का. मेरी माँ तो मतलब, और उन सीरियलों में मतलब सिंपैथी कार्ड तो ऐसे प्ले किया जाता था, मतलब हर कोई के साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में दुख दर्द भरी कहानी होती है. सुजल को कुछ हुआ था तो यहाँ पे हमारे घर में 3 दिन खाना नहीं बना था. बोलो. ओके, थैंक यू सो मच. अदर्स? Let me assume that the silence is positive and affirmative in nature. क्योंकि मैं तो आधा भरा हुआ वाला बंदा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, यू नो. तो नहीं बोल रहे हो मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आ रहा है. मैं क्यों नेगेटिव सोचूं भाई. Okay, so please put your enrollment number as a mark of your attendance for today. That's it from my side. See you all again in the next session with differential cash flows future value. So only one variety is to be covered in the future value, that will be covered in the next session. I hope you have got everything about the deferred annuity. See you all again in the next session with better energy and more enthusiasm. Take care. Sayonara.